So every day, please remind me to record the session. Whoever is taking the session, me or Surya sir. So please always remind to record the session. We have previous batch. In case we miss it, we have already previous batch recording. But I would always suggest you to remind us sometimes. So I might forget to record. Okay. So let me share my screen. Okay. So we will understand. I think, do you guys have any doubts from the previous slides? GUI, CUI, and front end, back end. Any questions or doubts? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. So let's understand. See, what is a project? What is a product? So yesterday I have told you, right? So when your software is again categorized into standard and customized. Okay, standard and customized. So customized means when you build or develop a software for specific customers. Suppose you're going to build a software for retail banking, for a bank, retail bank. Maybe you are going to build a software for maybe a learning management system, LMS. Okay, you're going to build a software for e-commerce site. So this is something which is called a customized software. So when we develop a software for a customer based on their needs and requirement, okay, suppose आप कोई business कर रहे हो, आपको you want to go online, तो आपको फिर एक e-commerce site बनाना पड़ेगा या whatever. Suppose आप you have a company and you want to manage the payroll. आपको क्या करना है? Payroll manage करना है, recruitment manage करना है, okay, employee onboarding, ये सब manage करना है. Then you will definitely request some of the software companies or vendors to build a software for you. So that is called projects, or that is basically developed by service based companies. Service based companies मतलब आपका TCS हो गया, Capgemini, okay. So you have Wipro, okay. There are 10,000 subs of service based companies, okay. So now ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ये आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं. सो यू गिव देम द रिक्वायरमेंट. आप पूरा रिक्वायरमेंट देते हो कि नहीं, सपोज आई वांट टू हैव 10 पेजेस, वेब पेजेस 10 होना चाहिए, एक रहना चाहिए होम, अकाउंट्स, डिटेल्स, जो जो रिक्वायरमेंट आप दे दो, वो फिर उनका जो बिजनेस एनालिस्ट करके एक बंदा रहेगा, दे विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स. ओके. सो हैव यू हर्ड अबाउट बिजनेस एनालिस्ट गाइस? सो बिजनेस एनालिस्ट किसे पता है? Do you know what is who is a business analyst? ये जो बिजनेस एनालिस्ट है, ये क्या करते हैं? आपने बहुत सारा रोल्स सुना होगा आईटी में. एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके. एक बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर. एक होता है टेस्टर, ओके. कुछ सपोर्ट बंदे काम करते हैं, सपोर्ट इंजीनियर्स रहते हैं. ये सब डिफरेंट डिफरेंट इनका कोई डेवलप करता है, कोई टेस्टिंग करता है, ओके, कोई सपोर्ट करता है. देन वैसे ही एक रोल है बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट. सो बिजनेस एनालिस्ट मतलब इनको हम लोग बोलते हैं एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, नहीं तो बोलते हैं डोमेन एक्सपर्ट. डोमेन एक्सपर्ट, ओके. एसएमई और डोमेन एक्सपर्ट. सो व्हेन आई से एसएमई और डोमेन एक्सपर्ट, इनका काम क्या होता है? सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी, पूरा उनका प्रोसेस, इंश्योरेंस कंपनी है, दे वांट टू ऑटोमेट देयर प्रोसेस, दे वांट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर पूरा उनका जो क्लेम हो गया या पॉलिसी हो गया, पूरा इंश्योरेंस का एंड टू एंड उनका एवरीथिंग दे वांट टू गो ऑनलाइन. दे वांट टू बिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस. दैट कंपनी में भी बिरला हो गया या SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया. सो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पूरा इंश्योरेंस का जो एंड टू एंड प्रोसेस को उनको कंप्यूटराइज करना है या उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है, ओके. सो नाउ if I just this is SBI life insurance. Now TCS got this project to develop. So TCS को ये प्रोजेक्ट मिला, चलो SBI लाइफ इंश्योरेंस का पूरा वो प्रोसेस को ऑटोमेट करे या एक एप्लीकेशन डेवलप करे. नाउ सपोज TCS has got software engineers, software testers, okay, senior engineers, junior engineers. Do you think an engineer can understand this business?
यहाँ पे एंड टू एंड कैसे काम होता है. ओके, सो अ टेक्निकल गाय cannot understand what happens in an insurance business or what happens in a retail banking or what happens in a railway reservation system. दे नो हाउ टू कोड. मुझे पता है, मुझे मैं कोड कैसे करूँ या वेबसाइट कैसे डेवलप करूँ या वेब पेज कैसे डेवलप करूँ, बट आई डू नॉट हैव दैट बिजनेस बैकग्राउंड. आप अगर बोलोगे कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, लोन्स का करो, ओके, सो आई डोंट नो, because I don't know how a bank runs, what all products the bank offers. Product मतलब जैसे आपका सेविंग्स में प्रोडक्ट, आपका डिपॉजिट में प्रोडक्ट्स हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, ये बैंक के लिए एक एक प्रोडक्ट है. आई डोंट नो हाउ दिस रन्स, कैसे ये चलता है, क्या कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, फ्लैट होता है, रिड्यूस्ड होता है, क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते हैं, ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं, या पूरा अकाउंट मैच्योर होने के बाद पे करते हैं इंटरेस्ट. आई डोंट नो द बिजनेस. ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड द लाइफ इंश्योरेंस कैसे चलता है, टू अंडरस्टैंड दिस, दे नीड टू हायर समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस डोमेन. इनको ना टीसीएस को एक जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो टेक्निकल बंदे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हाउ इंश्योरेंस कंपनी रन्स, कैसे क्लेम होता है, कैसे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव टू पे द प्रीमियम, सम अश्योर्ड क्या है. दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस. सो दे हैव टू हायर समवन हु इज गुड एट दिस बिजनेस. मे बी ये क्या करेंगे, ये एक पोजीशन ओपन करेंगे वेयर दे विल बी हायरिंग ए बिजनेस एनालिस्ट हु हैज गॉट 10 years एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री में, जिसको 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा. सो उसको हायर करेंगे. हायर करने के बाद नाउ दैट पर्सन हु इज अ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, ही विल गो एंड टॉक टू एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है ना. इसको समझता है बिजनेस कैसे चलता है. आई यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट, आई यू विथ मी, समझ में आ रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है समझना. यस सर, यस सर। Yes, sir. समझ गए। Understood. ठीक है, ये जो टेक्निकल बंदा है, इनको पता नहीं चलता है कि कैसे इंश्योरेंस बिजनेस रन होता है. नाउ दिस पीपल हैव टू हायर अ बिजनेस गाय हु इज एन एक्सपर्ट इन, ये कोई भी दूसरा कोई इंश्योरेंस में काम, जैसे बिरला में काम कर रहा होगा, नहीं तो और कोई आप सोच लो कि एलआईसी में काम किया होगा. सो इसने 10-12 साल या आईसीआईसीआई में काम किया होगा, इसने ना फील्ड पे काम किया होगा या इंश्योरेंस कंपनी में काम किया होगा. सो इसको हायर कर लिया. हायर करने के बाद इसको भेजेंगे कि एसबीआई के पास चला जा और इनका रिक्वायरमेंट समझ ले, इनको क्या करना है इंश्योरेंस में, पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन सब कुछ समझ ले. क्या क्या प्रोडक्ट वो जैसे जीवन आनंद रहता है एलआईसी का, देर आर hundreds of products let's say SBI is offering. Now each and every product this person has to understand. एक बार ये प्रोडक्ट को समझा, now he has to create a document. वो डॉक्यूमेंट में पूरा लिखेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, हमें ऐसे करना है, ये प्रोडक्ट के लिए इतना पेजेस डेवलप होगा, ये प्रोडक्ट के लिए ये स्क्रीन डेवलप होगा, एवरीथिंग. एक बार ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट लेके आ जाए, देन दिस पर्सन हैज टू एक्सप्लेन टू द टेक टीम. टेक्निकल टीम में डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, सपोर्ट टीम हो गया, सबको ये एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रोडक्ट को हमें कैसे डिजाइन करना है. ठीक है, प्रॉपर. फिर वो इसके लिए एक हाई लेवल डिजाइन प्रिपेयर होता है. लो लेवल, हाई लेवल मतलब आपका जो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम. तो हाई लेवल जो एक्सपर्ट्स है, मतलब ये जो हाई लेवल में भी जो इन्वॉल्व होंगे, ये भी एक्सपर्ट्स ही हैं, 10-12 साल टेक्निकल रोल में काम किए होंगे. तो दे विल डिजाइन हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स, लो लेवल डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद फिर डेवलपर टेस्टर को ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, भाई तुम तुम्हारा काम करना चालू करो अभी. Now, BA is a person who understands the requirement. Okay, actually gathers the requirement, understand the requirement, then documents the requirements also. ऐसा आप सुन के आगे तो क्या होगा, you have to document it. और डॉक्यूमेंट करने के लिए there are आप कॉन्फ्लुएंस करके एक टूल है, जीरा में भी होता है, जीरा करके एक टूल है. आप ये जीरा टूल सीखोगे आगे जाके. ओके, कॉन्फ्लुएंस करके एक टूल है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, आप पहले हम लोग के टाइम पे ये कॉन्फ्लुएंस जीरा जब नहीं था, ये वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल में वर्ड में ये रिक्वायरमेंट लिख के रखते थे, और वो रिक्वायरमेंट से डिजाइन क्रिएट होता था. डिजाइन क्रिएट लो लेवल डिजाइन में क्या होता था, कितना स्क्रीन बनेगा, कौन सा स्क्रीन में क्या क्या ऑप्शन रहेगा. आप जब ओपन करते हो कोई भी अकाउंट, फ्लिपकार्ट में आप बहुत सारे स्क्रीन पे जाते हो, माई अकाउंट पे जाते हो, विश लिस्ट पे जाते हो, देन यू गो टू ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट पेज पे जाते हो, देन शॉपिंग कार्ट पे जाते हो, शॉपिंग कार्ट से आप चेकआउट करते हो, एड्रेस, बिलिंग डिटेल्स भरते हो, शिपिंग डिटेल्स भरते हो, देन यू पेमेंट गेटवे पे जाते हो, पेमेंट गेटवे में पूरा आप डिटेल्स भरने के बाद ही ऑर्डर प्लेस होता है. वैसे ये एग्जैक्टली बोलेंगे कि क्या चाहिए, मतलब
ये कैसे इंश्योरेंस, कैसे आप एक लेट्स से आई वांट टू बाय वन इंश्योरेंस, कैसे बंदा बाय करेगा, देन हाउ हाउ ही इज गोइंग टू पे, ओके, स्टेटस कैसे देखेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, सब कुछ एवरीथिंग दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड। डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर हाई लेवल लो लेवल डिजाइन होगा, उसके बाद डेवलपर और टेस्टर काम करना चालू करेंगे, कोडिंग वगैरह या टेस्टिंग वगैरह चालू करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको Yes, समझ sir. आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो नाउ ये जो है, सो the reason I told you this because see this service based company में जो BA बंदे होते हैं, business analyst, they will go and talk to client and understand their business. They will after understanding they will, ये इतना easy process नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, लेकिन it takes time. Okay, it takes time, मतलब ये लग जाता है, मतलब 3-4 महीना 6 महीना खाली लग जाता है रिक्वायरमेंट को समझना और डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, सालों भी लग सकता है, ठीक है। सो नाउ ये बंदा जाके बात कर लिया, देन डेफिनेटली उनका जो जैसे कि प्रोजेक्ट मिला, उसका एक स्टार्ट डेट रहता है, एक एंड डेट रहता है, कब तक कितना डिलीवर करना है। आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या होता है बेसिकली अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो होता है। अजाइल मेथोडोलॉजी मतलब आपको ना आपको मैंने बोला कि आप मेरा सपोज टैलेंटेल का वेबसाइट मुझे बनाना है, मैं बोलूंगा कि पहले होम पेज बनाओ, होम पेज बनाओ, मैं देखूंगा क्लाइंट हैज ऑल द राइट्स टू वेरीफाई, मैं पैसा पे कर रहा हूँ ना, तो आई विल हैव ऑल द राइट्स टू चेक व्हाट यू गाइस आर वर्किंग ऑन। पूरा वेबसाइट बनाने के बाद अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अपने पास अभी टाइम नहीं है, आपने पहले नहीं बोला। सो पहले आप होम पेज बनाओ, मैं होम पेज देखूंगा, अप्रूव करूंगा, हाँ होम पेज ठीक लग रहा है, देन अबाउट अस पे जाना, अबाउट अस डेवलप करोगे, उसके बाद कोर्सेज पे जाना, कोर्सेस अप्रूव करोगे, उसके बाद टेस्टिमोनियल पे जाना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आपको ना ऑल ऑफ सडन सब रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे करके रिक्वायरमेंट आपको बोलेंगे कि चलो आप पहले डिपॉजिट पे काम करो। सो डिपॉजिट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेविंग्स, सो सेविंग्स पे काम करो, सेविंग्स अकाउंट पहले ओपन करो, सेविंग्स में ट्रांजैक्शन करो, सेविंग्स में बैंक स्टेटमेंट निकालो, सेविंग्स में ट्रांसफर करो, ये सब हो जाने के बाद देन यू मूव टू अदर अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का स्क्रीन डेवलप करो, करंट अकाउंट कैसे अकाउंट ओपन होता है वो डेवलप करो। करंट अकाउंट का पूरा होने के बाद जाओ एफडी। ओके, आप जब डेवलप करते जाओगे वैसे हम लोग ये फीचर को लाइव करेंगे। जैसे आप सोचो कि व्हाट्सएप जब पहले आया होगा, तो व्हाट्सएप में पहला जो फीचर रहेगा दैट इज चैटिंग, चैट करते थे। उसके बाद ग्रुप चैट आया, उसके बाद ऑडियो ऑडियो शेयर, फोटो शेयर, वीडियो शेयर, उसके बाद वीडियो कॉल आया, उसके बाद वीडियो कॉल के बाद वीडियो चैट आया, आई मीन वीडियो सॉरी वन टू वन वीडियो कॉल, उसके बाद ग्रुप वीडियो कॉल। अभी व्हाट्सएप में आप पेमेंट भी कर सकते हो, राइट। सो ये एक दिन नहीं आया, राइट, इट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम। सो एक डिफरेंट डिफरेंट वर्जन क्रिएट होता है, एक एक वर्जन में न्यू न्यू फीचर्स ऐड होके आता है। ओके, सो अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, सो नाउ प्रोजेक्ट, सो व्हेन यू गिव ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपका स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है। ऐसा नहीं बोलते कि नहीं आप 5 साल लेके प्रोजेक्ट डेवलप करो, या देयर इज इन्फिनिट टाइम, आप कभी भी दो, ऐसा कर नहीं सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोकल कभी भी लोकल टेलर के पास जाते हो कपड़े स्टिच करने के लिए, आप थोड़ी ना बोलते हो कि यार आप 2 साल लेके कपड़े स्टिच करके मुझे डिलीवर करो। सो यू गिव देम द टाइम कि चलो आगे पूजा है या आगे कोई फेस्टिवल है, मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। आप मेजरमेंट देते हो, कपड़ा देते हो, पूरा रिक्वायरमेंट उसको समझाते हो कि कैसा करना है। ओके, ओके, सो समझाने के बाद देन ही टेक्स वीक ऑफ 10 days ऑफ टाइम, टू फाइनली डिलीवर यू द एंड प्रोडक्ट। मतलब आपका ओके ट्राउजर हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ओके ओके, कुर्ता हो गया, कुर्ती हो गया, वो स्टिच करके दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलते हो कि चलो यार आप टाइम ले लो, इनफ टाइम ले लो। सी जैसे प्रोजेक्ट में स्टार्ट करता हूँ, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर डेवलप होगा, तभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा या कंपनी में उसको चलाऊंगा, रन करूंगा। सो आई विल गिव ए स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड प्रोजेक्ट इज समथिंग विच यू वांट टू अचीव विथ सर्टेन वैल्यू, बजट एंड स्कोप। ओके, सो ऑब्वियसली एक टाइम देते हो, एक रिक्वायरमेंट देते हो, और वैल्यू, चलो मैं 500 रुपया दूंगा स्टिच करने के लिए, अच्छा 1 वीक ऑफ टाइम दूंगा, एंड दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, मुझे ऐसा 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 करना है, चलो। सो दिस इज व्हाट अ प्रोजेक्ट इज। सो इसको बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज डेवलप करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज मतलब आपने मैं आई हैव टोल्ड यू देयर आर मेनी सर्विस बेस्ड कंपनीज। ओके, सो these are few of them: TCS, Capgemini, Wipro, Cognizant, Accenture. Okay, so Entity Data, so L&T Infotech, Mindtree, these are called service based company. A few of the companies have their own products, so but these are called service based company.
So understood who are the service based company, what are they do? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. everyone, or you guys have any doubts? आ रहा है समझ में? Clear? Yes, sir. Yes, sir. So guys, need your active participation. Otherwise, I'll not get motivated if you don't respond. Okay. Yes. Okay. The next is product. Product होता क्या है? Product से जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी है वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है. ठीक है. सो प्रोडक्ट क्या करता है? ये इनका खुद का प्रोडक्ट रहता है. जैसे आप लोग देखोगे तो व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है. व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है. ये आपका MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम PPT यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज MS ऑफिस इज अ प्रोडक्ट. विंडोज इज अ प्रोडक्ट जो कि कॉमनली लोग यूज करते हैं. टैली, जैसे टैली इज ए प्रोडक्ट. ओरेकल इज ए प्रोडक्ट. ओके. सो प्रोडक्ट मतलब व्हेन वी बिल्ट अ सॉफ्टवेयर फॉर वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड प्रोडक्ट. आप मार्केट के रिक्वायरमेंट समझते हो और प्रोडक्ट बनाते हो. जब टैली डेवलप हुआ, टैली वालों ने सोचा होगा या वो कोई बंदे ने ये प्रॉब्लम देखा होगा कि अरे यार बहुत सारा स्मॉल साइज कंपनी है. ओके. माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है या बहुत सारा स्मॉल साइज कंपनीज है. वो लोग है ना, मतलब वो काम एक्सेल में करते हैं फॉर देयर अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग. पेरोल अकाउंटिंग एक्सेल में करते हैं या उनका पूरा जो इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्सेल में ट्रैक करते हैं. मे बी इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर देम. लेट अस बिल्ड ए सॉफ्टवेयर. चलो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. 3-4 हज़ार लाइसेंस कॉस्ट रखते हैं. सबका काम हो जाएगा. स्मॉल टू मिड साइज कंपनी, उसी में उनका अकाउंटिंग काम हो जाएगा सब कुछ. तो आप मार्केट की प्रॉब्लम समझते हो, उसके बाद खुद का एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो और सेल करते हो. जैसे MS ऑफिस एक प्रोडक्ट है. विंडोज इट्स ए प्रोडक्ट. ओके. VLC प्लेयर एक प्रोडक्ट है, कोई भी यूज करता है. ओके. सो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है. SAP का एक ERP सिस्टम है, दैट इज ए प्रोडक्ट. देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स. माइक्रोसॉफ्ट का तो भर भर के प्रोडक्ट है. माइक्रोसॉफ्ट इज ए प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. Okay, so when you build a software for wide range of customer based on market requirement called product. जैसे मैंने बोला कि these are like LinkedIn, it's a product. Okay, so it is built by product based companies. Product based मतलब इनका खुद का प्रोडक्ट रहता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, SAP हो गया. ओके. देन देयर आर टैली हो गया. दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. इनका खुद का प्रोडक्ट रहता है. सो प्रोडक्ट का वो लाइसेंसिंग कॉस्ट लेके फिर सेल करते हैं पब्लिक को. ओके. ये पूरा मार्क देखो, जैसे अकाउंटिंग एक मैंने जैसे आपको बोला कि दिस वाज ए प्रॉब्लम अर्लियर. तो इन्होंने प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा और उसी हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर दिया. ओके. लेट्स से डंजो हो गया या ब्लिंकिट हो गया जो कि ऑनलाइन. जोमेटो इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. उबर इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. इनका खुद का प्रोडक्ट बनाया, ये समझे मार्केट की प्रॉब्लम. ओके. जोमेटो समझा फूड डिलीवरी ऐप. सो दिस इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. दिस इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ये कोई स्पेसिफिक के लिए बनाया नहीं गया है, ये सब पब्लिक यूज करते हैं इसको. कुछ प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट यू हैव टू पे द लाइसेंसिंग कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट, देन यू कैन यूज इट. गॉट इट? ओके. सो Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट हैज नो, यहाँ पे जैसे एक स्टार्ट फेज है, एंड फेज है, बट प्रोडक्ट हैज नो एंडिंग फेज. ऑलवेज कम्स विथ न्यू अपडेट एंड वर्जन. प्रोडक्ट का कभी भी एंड फेज नहीं होता है. प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होता है. जैसे आपका व्हाट्सएप आया होगा, व्हाट्सएप का 1.0 आया, ओनली विथ चैट फीचर. एक मिनट. ओके. सो व्हाट्सएप मतलब फर्स्ट वर्जन है व्हाट्सएप 1.0. सो खाली चैटिंग रहता था. चलो व्हाट्सएप 2.0 आया, उसमें चैट प्लस ओके ऑडियो फाइल शेयर, एक इमेज, लेट्स से इमेज शेयरिंग. आप इमेज शेयर कर सकते हो. सो व्हाट्सएप का जो नेक्स्ट वर्जन आया 3.0, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 2.0 में जो फीचर्स है, चैट इमेज प्लस लेट्स से वीडियो फाइल शेयरिंग. व्हाट्सएप 4.0, 3.0 में जो फीचर है प्लस कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग. ओके. So now this product will never ever end. It will always comes up with a new version. न्यू वर्जन क्यों हम लोग न्यू वर्जन क्यों डेवलप करते हैं या न्यू वर्जन क्यों रिलीज करते हैं? फर्स्ट थिंग इज, अगर सी इफ देर इज सम, ये है व्हाट्सएप 3.0. सो
we will have to add some new features, new functions or features. और if there is an issue, मतलब अगर काफी लोगों ने रिपोर्ट किया कि अरे यार व्हाट्सएप 3.0 में ये जो व्हाट्सएप वर्जन है ये बहुत बार हैंग होता रहता है, ठीक है, मैसेजेस शेयर नहीं कर पा रहे, इमेजेस शेयर नहीं कर पा रहे, वीडियोस, अगर कुछ एग्जिस्टिंग इश्यू रहेगा, वो एग्जिस्टिंग इश्यू को फिक्स करेंगे। डेवलपर क्या करेगा, ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, फिक्स करेगा, उसके बाद एक नया फीचर ऐड कर देंगे, तो देन व्हाट्सएप 4.0 विल कम। सो व्हाट्सएप 5.0 कब आएगा, अगर 4.0 में कुछ इश्यू रहेगा वो फिक्स होगा, नहीं तो कुछ नया फीचर्स को वो ऐड करेंगे। चलो इस बार हम लोग ग्रुप ऑडियो कॉलिंग चालू करते हैं, इस बार 1-to-1 वीडियो कॉलिंग, इस बार ग्रुप वीडियो कॉलिंग। ओके, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज इवॉल्व्ड। ओके, ऐसे ही डेवलप होता है, मतलब ऑल ऑफ सडन सब कुछ नहीं आता है, सो स्लोली ग्रेजुअली वो डेवलप कर करके जाते हैं। ओके, सो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं ना, सो इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वर्जन्स रिलीज करते हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। और अगर देखो, अगर मेजर चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, तो ये कंप्लीट वर्जन आता है, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हो 1.0 उसने रिलीज किया, उसके बाद 1.1 रिलीज किया, 1.2 रिलीज किया, ऐसा भी करते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके, सो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हम ऐसा नहीं बोल सकते, एक प्रोडक्ट का अर्लियर फेज जो होता है वो एक प्रोजेक्ट होता है। देखो, ऐसे बोल सकते हो, देखो एक प्रोडक्ट में बहुत सारा, सपोज एक मेजर प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट में बहुत सारा कंपोनेंट्स है, ठीक है, आप उसको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ले सकते हो। यस। सो प्रोडक्ट का जो लेट्स से इंटरनेट, एक लेट्स है आपका रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग के अंदर भी बहुत कुछ होता है। ओके, सो इसको आपके लिए जो कंपनी डेवलप कर रहा है वो बोल सकता है कि ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट, यस यस। ऐसा आप बोल सकते हो। जी। ओके, सो आप अगर देखोगे टीसीएस को हम लोग बोलते हैं कि टीसीएस इज प्योरली सर्विस बेस्ड कंपनी, दैट इज बेस्ट। यस। टीसीएस इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी हम लोग बोलते हैं। बट इनका भी कुछ कुछ प्रोडक्ट है, इनका एक प्रोडक्ट है बैंक्स 24, बैंक्स 24, ये यूज करता है टीसीएस, सॉरी, एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, और भी इंडिया में बहुत सारे बैंक्स यूज करते हैं। ओके, पब्लिक, मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूज करते हैं, और चाइना, साउथ अफ्रीका, बहुत सारा जगह पे यूज होता है, सो इट इज अ प्रोडक्ट। ओके, एफएनएस करके एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी था, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर को ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स लगा उनको ये डेवलप करने के लिए, टीसीएस ये कंपनी को खरीद लिया। दिस कंपनी हैज 200 एम्प्लॉइज, तो कुछ 200 या 250 एम्प्लॉइज थे, और इन्होंने 10 से 15 साल लगकर ये प्रोडक्ट डेवलप किया था। टीसीएस जाके ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके बाद दिस प्रोडक्ट इज नाउ, द ओनर इज नाउ टीसीएस। ये क्या करता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आया, सो ये यही प्रोडक्ट यूज करते हैं, छोटा मोटा कस्टमाइजेशन करके ये सेल करते रहता है, ये टीसीएस का प्रोडक्ट है, बैंकिंग प्रोडक्ट है। सो दिस प्रोडक्ट हैज मेनी सब, जैसे कि आपका वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एटीएम मैनेजमेंट हो गया, तो जो कंपनी डेवलप कर रहा है, लेट्स से टीसीएस डेवलप कर रहा है, ये पार्ट पार्ट एक एक प्रोजेक्ट, बट ओवरऑल दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर टीसीएस। इसका जो कंपोनेंट्स है, दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, सो let's understand, let's understand, ओके, डीबीएमएस वगैरह, डीबीएमएस या डेटाबेस समझते हैं। ओके, ये सब समझते हैं, उससे पहले समझते हैं डेटा। डेटा, आई होप एवरीवन नोज हियर, सबने मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा। डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, और डेटा यू कैन से इट्स अ रॉ फैक्ट, राइट? Data is a piece of information or it's a raw fact. Okay, so that means, see, data, if you just write a number, it doesn't make any sense. मैं लिखूंगा 30, 20, 50, it will not make any sense. 70, 80, okay. Now, if I just put it in a structured format, let's say, I'll say orders placed
I'll say day. Okay, Monday 30 order place हुआ, Tuesday 20 order, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Now, okay, so if you look at here, this table contains how many orders are placed on daily basis. Now you can clearly understand this. Each record is maintaining order details. Okay, daily order details. Now when you just look at these numbers, you will not understand anything because it doesn't have any significance. अब ये देख के समझ पा रहे हो कि number of orders placed. Now since you have put it in a structured format, now you can clearly understand it is information about daily transactions or daily order placed. Data doesn't have any meaning or any you cannot take any decision from this data. Now by looking at this information you can clearly understand कि मेरे पास संडे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आता है, उसके लिए आई हैव टू मेक माय डिलीवरी टीम रेडी. मेरा डिलीवरी टीम रेडी रहेगा तभी जाकर टाइमली ऑर्डर कर पाएगा. अभी मंडे ट्यूसडे आप देखोगे इस दिन कम ऑर्डर रहता है, सो कोई टेंशन नहीं है. अगर मैं देखूंगा ओवर द वीकेंड आई एम गेटिंग हाईएस्ट ऑर्डर्स 80 90 100. नाउ यू कैन actually extract knowledge or insights from this information. First ये हो गया आपका डेटा के बाद इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल. आप डिसीजन कब लेते हो? जब आप इंफॉर्मेशन से इंसाइट्स निकालते हो. इंफॉर्मेशन से इंसाइट निकालते हो. जैसे मैंने बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को दिया होगा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हाउ टू गेट इनसाइट्स. सो इनसाइट्स आप क्या करते हो, कुछ जैसे कि आप बहुत सारा फंक्शंस है, स्लोली हम लोग पढ़ेंगे. मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर्स क्या है, लोएस्ट ऑर्डर्स क्या है, कौन सा डे पे ये ऑर्डर सेल हुआ है. ओके, इफ आई एम रनिंग ए रेस्टोरेंट, आई हैव टोल्ड यू, सो इफ आई एम गेटिंग 100% बिजनेस, सो कहाँ से कितना बिजनेस मुझे मिलता है. फूड वाइज में देखूंगा कौन सा फूड से कितना बिजनेस मिलता है. कस्टमर वाइज देखूंगा कि कितने कस्टमर्स आए हैं, टॉप 5 कस्टमर्स कौन थे आज, बॉटम 5 कौन थे. ओके, सो क्या आइटम सेल हुआ, क्या आइटम इज, आई मीन विच आइटम इज giving me higher sales, which item is giving me lower sales. All that I can analyze and these are my insights for a restaurant. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये बेसिक है. हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पावर बीआई एडवांस एक्सेल आप लोग पढ़ोगे तब पूरा ये डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे इनसाइट्स निकालते हैं, कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं, कैसे चार्ट्स ग्राफ्स कैसे बनाते हैं. दैट यू विल लर्न ग्रेजुअली. ओके, ये जस्ट बेसिक्स है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. पहले हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन इनसाइट समझ ले. नाउ वेयर द डेटा गेट स्टोर्ड. पहले नॉर्मली हम लोग कभी भी डेटा को स्टोर करते थे, कुछ भी सी हम लोग एक फाइल में सेव करते थे डेटा को, राइट? यस और नो? एक फाइल में हम लोग सेव करते थे. मे बी आपका टेक्स्ट फाइल हो गया, मे बी आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, एसएलएस फाइल हो गया, ओके, पीडीएफ हो गया. ओके, सो गाइस, डू यू नो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशंस? yes sir, yes sir. यस, एक फाइल को जब आप कंप्यूटर में सेव करते हो, एवरी फाइल हैज अ प्राइमरी नेम एंड एन एक्सटेंशन नेम. ये बहुत ज्यादा बेसिक है. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑल दिस. आई एम जस्ट कवरिंग. कुछ लोगों को अगर पता नहीं होगा तो दे कैन रिलेट. अगर मैं एक फाइल सेव किया, ओके, let's say data.xls. so this is called a primary name. इसको प्राइमरी नेम बोलते हो आप लोग. इसको बोलते हो सेकेंडरी नेम और एक्सटेंशन नेम. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ओके, सो पहले आई स्पोक टू कपल ऑफ गाइस, दे हैव कंप्लीटेड देयर एमसीए. ओके, एमसीए कंप्लीट किए थे बट दे वर नॉट नोइंग एक कंप्यूटर में आप फाइल सेव करते हो तो उसका एक एक्सटेंशन नेम रहता है. दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस. दैट इज रीजन व्हाई आई हैव टोल्ड यू. कोई भी फाइल आप सेव करते हो, MP3 फाइल मतलब ऑडियो फाइल, MP4 फाइल, इट्स अ वीडियो फाइल, VOV, आई थिंक there are a lot of JPEG, okay, GIF, then your PNG, these are called image files, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so this is about primary name and extension name. Okay, so data कैसे स्टोर होता है? जब आप एक, let's say एक फ्लैट फाइल है आपके पास, नोटपैड में एक फाइल है, नोट, let's say मेरा एक फाइल का नाम है details.txt.
डिटेल्स डॉट टीएक्सटी, या अपने नोटपैड में कोई भी फाइल बना सकते हो, एक नोटपैड में कुछ लिख के आपने सेव कर दिया, नाउ द एक्सटेंशन इज टेक्स्ट फाइल, ओके, सो डिटेल्स डॉट टीएक्सटी। सो कोई भी फाइल आप कंप्यूटर में सेव करते हो तो मेमोरी कैसे, इसके लिए मेमोरी कैसे लिया जाता है, सी आप अगर एक कैरेक्टर लिखोगे, मैं लिखूंगा बी, बी मीन्स इट इज वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, सो वन कैरेक्टर मीन्स इट इज वन बाइट, ओके। सो वैसे 1024 कैरेक्टर्स होंगे वो फाइल में, अगर 1024 कैरेक्टर्स होंगे, नाउ दिस फाइल विल बी 1 किलोबाइट। सो 1024 KB is 1 megabyte, 1024 MB 1 GB, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे फिर GB हो गया, TB हो गया, टेट्राबाइट, ये सब बहुत सारा आगे है कि ओके, आप लोग देख लेना ये सब, ठीक है। दिस इज हाउ डेटा गेट स्टोर्ड, ओके। एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग, जो हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, ओके, हम लोग कभी भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ABCD लिख रहा हूँ, ओके, या EFG लिख रहा हूँ, सो सिस्टम तो ये समझता नहीं ना, योर कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। कंप्यूटर 0 1 समझता है, ओके, कंप्यूटर 0 1 0 1 ये बाइनरी कोड समझता है। तो हर एक के लिए ये जो कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं ABCD 1 2 3 4, हर एक के लिए एक नंबर रहता है, ASCII नंबर रहता है। सुना है ASCII नंबर? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट ए मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट ए मिनट। Sir, I don't know about the ASCII number. कल ही मिला था मुझे एक अच्छा सा, हाँ क्या है, हाँ, कैन यू सी दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो आप अगर देखोगे, देखो कीबोर्ड में जो जितने सारे कैरेक्टर्स हैं ना, ए हो गया, बी हो गया, या ABCD, या कैपिटल स्मॉल, ये सब, इसके लिए एक ASCII वैल्यू रहता है। सो ओके, ASCII वैल्यू, सो ASCII वैल्यू के साथ ASCII वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी वैल्यूज में। नाउ योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दिस। सो आप अगर ए टाइप करोगे, कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड ए के लिए 01000001। सो वी शुड नॉट नो हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड, इसको कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यूज में। दिस आर द बेसिक्स यू शुड अंडरस्टैंड। कोई भी कुछ भी आप टाइप करते हो, बट दैट कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड, ओके। सो हर एक लेटर के लिए एक ASCII वैल्यू रहता है, और ASCII वैल्यू कन्वर्ट होता है बाइनरी वैल्यूज में। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. So, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम लोग डेटा बोल रहे हैं, okay, so data, we have two types of data. One is called qualitative, second one is called quantitative. So qualitative and quantitative. So qualitative में क्या है? Basically qualitative is, it refers to the text data. Okay. Quantitative refers to the numeric data. Okay. So qualitative में text data को रेफर करते हैं, और categorical data, कैटेगरिकल डेटा को रेफर करते हैं क्वालिटेटिव में न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक में भी आप देखोगे, न्यूमेरिक में एक हो गया होल नंबर्स, एक हो गया होल नंबर हो गया, और एक हो गया आपका डेसिमल नंबर, राइट? ओके।
So whole number means say 1, 2, 3, 4. Okay, round numbers basically. Whole numbers means without the decimal one. Okay, 1, 2, 3, 4. So if I'll ask you how many students visited the institute, you cannot say 3.5 students, right? You say either Right. 4 or 10 or 20. You have to say a whole number. But when I say what is the commission you have received after selling this product, आपने product sell किया, आपको क्या commission मिला, बोल सकते 2.5%. Bonus कितना मिला, 7.3%. Right? Okay. So 7.3, 2.5, 10.20. Okay. These are called. Okay. So these are called Yes, sir. decimal numbers. Correct? ये हो गया decimal number. ये हो गया whole number. Whole number means it will not have decimal places. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. When it comes to quantitative data, so quantitative data में आपको टेक्स्ट डेटा मिलता है. जैसे आप बोलोगे कि कलर, ओके, कलर ब्लू है, रेड है, येलो है. ओके, तो नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो. आपका जो नेम है दैट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव डेटा. ओके, आपका जो जैसे आपका डिवीजन, आपने डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो सब मिला, इट्स कॉल्ड qualitative data. Quantitative means you can measure this with quantity. Qualitative means it is called a text data or categorical data. Okay. So now when I say text data में भी आप देखोगे it's pretty straightforward. न्यूमेरिक तो आपको समझ में आ गया. एक है होल नंबर. ओके, होल नंबर आपको पता है 10, 20, 30, 40. डेसिमल में you will have decimal places 20.22, 1, 10.25, 3.25. Okay, so text data में, see, text data में you have, let's say I'll write Ankita. Okay, so when I write Ankita, it is a text data. Text data नहीं तो इसको बोलते हैं string. So when I say A is a character. So what is string? So string or text means a collection of characters. When I say how are you, this is called a text data or string data. Text or string. So अगर मुझे चेक करना है, see how are you means it is a complete string. The size of the string, if you can check 1, 2, 3, space को भी count करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So length of this particular string is 11. Because जब आप साइज काउंट करोगे या ये, आई मीन इफ यू वांट टू चेक द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यू विल हैव टू आल्सो काउंट स्पेस को भी काउंट करना पड़ता है. अगर सपोज आई विल ओपन ए नोटपैड एंड आई विल ट्राई टू टाइप दिस एंड सेव दिस फाइल, तो फाइल का साइज होगा 11 बाइट्स. अंडरस्टूड? 11 कैरेक्टर्स और 11 बाइट्स. Yes. क्लियर? स्पेस को आपको Okay. काउंट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए. अब अगर मैं लिखता हूँ YNABC, सो ये एक कैरेक्टर है. ठीक है. अगर मैं लिखूंगा हेलो, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यू. क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, so what is this? It is a numeric value or a text value? Text values. Text value. Text values, sir. It's a text value. It's a text value. Okay, so it is a text value. So when I say text or string, guys, please go on mute. When I say text or string, so string means, okay, text or string means it can be only alphabets. Please ignore my spelling mistake, okay?
अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो व्हेन आई से दिस वन, ये हो गया अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक। आपका AHKPL 1234N। पैन कार्ड आपने देखा होगा, पैन कार्ड का जो नंबर ऐसे ही होता है, राइट? पहले 5 कैरेक्टर, पहले 5 अल्फाबेट रहता है, उसके बाद 4 न्यूमेरिक रहता है, लास्ट में एक अल्फाबेट रहता है, राइट? Yes, sir. दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट बोल सकते हो। स्ट्रिंग बोलो, टेक्स्ट बोलो, चलेगा। ओके, सो व्हेन आई से लेट्स से एड्रेस, कभी भी प्लॉट नंबर 1 2 3, देन हाउस नंबर 3 4 5, okay, BBSR 1 2 3 4 5 6. This is a pin. So what is this, guys? Read text data. It is a text, because I have told you text is a combination of alphabet plus numeric plus special characters. So clear, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो चलो इसका स्टोरेज के बारे में सोचते हैं। ओके, सो हम लोग बेसिकली डेटा यू अंडरस्टूड, डेटा इंफॉर्मेशन ये सब आपको समझ में आया। नाउ हाउ टू स्टोर दिस डेटा। नॉर्मली हम लोग फाइल में सेव करते थे, कोई भी फाइल, एक्सेल, वर्ड, ठीक है, उसमें सब सेव करते थे पहले। बट नाउ देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। जब आप ह्यूज अमाउंट, लेट्स से कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप सेव करोगे, तो कुछ भी रैंडमली कोई फाइल है, लेटर है, कोई आप कुछ सब्जेक्ट वगैरह लिख रहे हो, ऐसे वगैरह लिख रहे हो, that you can store in any of the files. But when you have structured data and when you have huge amount of data, the Excel में there is a limitation. You cannot store more than 10 lakh records. But think of a bank, think of HDFC Bank, think of ICICI Bank, think of Indian Post, think of railway ticketing system. So the number of tickets they booked, the number of tickets that are booked per day, एक दिन में जितना टिकट्स बुक करते हैं, या महीने में जितना टिकट्स, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ये डेटा सब आप एक्सेल में सेव कर सकते हो? एक्सेल का लिमिटेशन है 10 लाख, राइट? No, sir. Yes, sir. यू कैन नॉट सेव इट। लाइक HDFC का सोचो, SBI का सोचो, इंडियन पोस्ट का सोचो, रेलवे का सोचो, any big organization you think of, they cannot save their data in एक्सेल में सेव भी करके काम नहीं कर पाएंगे, डेटा को रीड प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल बार बार क्रैश होगा। ओके, एक्सेल बार बार क्रैश होगा when it stores at least 2-3 lakhs का भी रिकॉर्ड। 10 lakhs तो भूल ही जाओ, 1-2 लाख अगर रिकॉर्ड सेव करोगे ना, रो पड़ेगा एक्सेल। ओके, सो नाउ बहुत पहले नॉर्मली नोटपैड फ्लैट फाइल में बिफोर 1970s ये फ्लैट फाइल में सेव होता था। और फाइल को अगर मुझे देखो, अभी आपको ना कितना इजीली, आप बैंक में जाते हो, आप बोलते हो कि आप पूछते हो कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है, तो वो सेकंड्स में निकाल देता है। वो आपका अकाउंट नंबर लेता है और सर्च करता है, एक विद इन 2 to 3 seconds और विद इन अ सेकेंड दे विल बी एबल टू टेल यू सर और मैम दिस इज योर अकाउंट बैलेंस। बट पहले जब आपके पास एक फाइल था, वो फाइल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। सपोज आप सोचो कि अच्छा अंकिता का बैलेंस या स्वागतिका का अकाउंट बैलेंस, ओके, सो बहुत सारा स्वागतिका रहेंगे, बहुत। उसमें क्या होता था, फ्लैट फाइल में डुप्लीकेट वैल्यूज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता था। आप 100 डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें मतलब एंटर करोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट। ये नॉर्मल फाइल है, आप वर्ड या नोटपैड या वर्ड फाइल ओपन करके कुछ भी रिकॉर्ड लिखो, डुप्लीकेट लिखो, वो अलाउ करेगा और उसमें ढूंढना मुश्किल होगा। बट when you are looking for Ankita's account balance, so you will see there are thousands of Ankitas, they have opened accounts in a bank. तो किस अंकिता का आपको अकाउंट बैलेंस आप चेक करोगे? तो फ्लैट फाइल में बहुत सारा सिक्योरिटी इशू होता था, फाइल डेटा आपको रिट्रीव करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, डेटा आप निकाल नहीं सकते थे उसमें, और रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशंस बहुत होता था। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। हम अगर वो फिर भी डिस्कस करेंगे तो 1-2 दिन लगेगा। दैट इज नॉट एक्चुअली, दैट इज नॉट यूजफुल, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो बहुत सारा फ्लैट फाइल में चैलेंजेस होते थे। सो दैट इज रीजन दे हैव कम अप विद डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस में फिर डेटा स्टोर करने के लिए दे हैव डेवलप्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
और डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए वेयर वी कैन स्टोर द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. ओके, सो व्हेन आई से डेटाबेस, just a minute guys. So data, I have already told you, data is a raw fact. It is unorganized. Data is meaningful. Okay. Data is not sufficient for decision making, usually unstructured and random. Okay. So information is organized. Information is meaningful. Decision can be taken from the information. And it is presented in a structured manner. जैसे आपको sales दिखाया, orders, कौन से day में कौन कितने orders place में है, ठीक है? So that's about information. Now let's understand व्हाट इज अ डेटाबेस. डेटाबेस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज जब फाइल सिस्टम में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज. डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को सर्च करना, डेटा को अपडेट करना. ओके, डेटा कोई स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा को ढूंढना, और डुप्लीकेट्स, बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा आप स्टोर कर सकते थे. और बहुत, लेट्स से वन फाइल हैज गॉट 1 crore रिकॉर्ड्स, उसमें से फिर एक कोई स्पेसिफिक कस्टमर का रिकॉर्ड ढूंढना, बिकॉज ये स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर होता है. सो रिकॉर्ड फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल होता था. सो दैट इज रीजन दे हैव कम अप विद डेटाबेस. सो व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज अ स्टोरेज प्लेस और रिपोजिटरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट. ओके, डेटाबेस एक स्टोरेज प्लेस है where data is stored in a tabular format. Databases are used for storing, maintaining and accessing any sort of data. पहले मैं आपको समझाता हूँ. Database is a storage place. When I say database is a storage place, आप अगर देखोगे, आप अगर देखोगे आपके घर में अलमारी और वार्डरोब रहता है, राइट? ओके, और you can say, so when you have a rack or a wardrobe, तो डिफरेंट रैक्स रहता है, शेल्फ्स रहता है, राइट? सपोज दिस इज लेट्स फॉर जेंट्स वेयर यू कैन पुट योर क्लोथ्स. ओके, आपका जो हैंगर में फिर वो ट्राउजर वगैरह, ओके, शर्ट वगैरह ये करते हो. फिर एक लेडीज का रहेगा, उसमें आप साड़ीज हैंग कर सकते हो, ठीक है? देन यू हैव लॉकर वगैरह, लॉकर रहेगा. ओके, लॉकर रहेगा. ओके, वेयर यू कैन पुट योर कीप योर कैश, ज्वेलरी जो भी है लॉकर में रख सकते हो. नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज अ स्टोरेज प्लेस. आप इसमें डायरेक्टली चीजें डंप नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली लेके नहीं रख रहे हो. आप क्या करो, डिफरेंट रैक्स बनाए हुए हो, शेल्फ्स बनाए हुए हो. सो उसी शेल्फ्स में जाके आप डेटा को स्टोर कर रहे हो. आप अगर सोचोगे रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचो, फ्रिज के बारे में सोचो. सो फ्रिज में जो आपने, सपोज आप मार्केट गए हो, आप उधर से कुछ सामान खरीद, आप फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स, अंडा, नॉनवेज, सब कुछ लेके आए हो. आप एक जगह पे सब डंप करते हो, या वेजिटेबल बास्केट में वेजिटेबल रखते हो, ये साइड डोर में अंडा रखते हो, यहाँ पे आप ये जगह पे आप क्या करते हो, कोक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हो, ऊपर अंडा रखते हो. कुछ फ्रोजन आइटम्स है तो उसको ये आपके इसमें मतलब आइस जो स्टैंड होता है, ओके, इधर रखते हो फ्रोजन आइटम्स. यहाँ पे सब रखोगे या एक जगह पे सब लेके डंप कर दोगे? सर स्ट्रक्चर वे में रखना Section पड़ेगा, wise. स्ट्रक्चर्ड वे में. अलग अलग रखें. यस, कैटेगरी. if this is a repository or a storage place, you have racks or shelves. वो यहाँ पे वेजिटेबल रख लो, यहाँ पे कुछ मतलब लेट्स से ड्रिंक वगैरह कुछ लेके आए हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब यहाँ पे रख लो, अंडा इधर रखो, फ्रोजन आइटम्स इधर रखो, और नॉर्मली और कुछ जो सामान है यहाँ पे रख सकते हो. डिपेंड्स. ओके, नाउ एक लाइब्रेरी के बारे में सोचो. सो लाइब्रेरी रूम में डायरेक्टली सब बुक्स एक जगह पे डंप करते हैं, या सब अलग अलग रैक्स मेंटेन करते हैं, नॉवेल्स के लिए, जो आपके मैथ्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, या आर्ट्स, कॉमर्स, ओके, इंजीनियरिंग, सबके लिए डिफरेंट रैक्स मेंटेन करते हैं, राइट? यस सर. Yes, सो डेटाबेस एग्जैक्टली वही है. डेटाबेस, व्हेन आई से डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी, जहाँ पे डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी और स्टोरेज प्लेस, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, बट रैंडमली नहीं. आप क्या करते हो, डेटाबेस को ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. यू विल नॉट बी एबल टू सी फिजिकली, बट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया एक डेटाबेस. अगर मैं स्कूल का डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम है स्कूल. सो स्कूल के अंदर मैं क्या करूंगा,
डेटा को टेबुलर स्ट्रक्चर में मेंटेन करूंगा। ये हो गया मेरा स्टूडेंट का टेबल, जहाँ पे मैं स्टूडेंट डेटा मेंटेन करूंगा। ये हो गया टीचर्स टेबल, जहाँ पे मैं टीचर्स का डेटा मेंटेन करूंगा। ये हो गया लाइब्रेरी वाला टेबल, जहाँ पे बुक्स का इंफॉर्मेशन। ये हो गया और कोई स्टाफ टेबल, और कोई हो गया एडमिन वर्क या फीस टेबल, यहाँ पे फीस का डेटा मेंटेन होगा। ओके, रिजल्ट्स टेबल, जहाँ पे रिजल्ट्स स्कूल का स्टूडेंट्स का रिजल्ट का डेटा मेंटेन होता है। ठीक है, सो डेटाबेस इज ए रिपोजिटरी और ए स्टोरेज प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटा Yes, यहाँ sir. ऐसे ही स्टोर होता है। और एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so now, No. so when I say table, this is a table. Table is consist of row and columns, right? ये जो लाइन है, लेट्स से मैं लिख रहा हूं आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, email ID, okay, let's say fees. So these are called rows. These are called rows. इस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, दिस इज कॉल्ड रोज, इसको बोलते हैं रो। कॉलम्स है ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में जो है कॉलम्स। सो रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रो इज कॉल्ड ट्यूपल्स, टपल्स बोल सकते हो, ट्यूपल्स बोल सकते हो, और रिकॉर्ड्स। क्योंकि व्हेन आई से रोज, दिस रो होल्ड्स अ पर्सन्स रिकॉर्ड। लेट्स से आईडी इज 1, ओके, नेम इज लेट्स से दीपक, ओके, एड्रेस इज BBSR, फोन नंबर इज जो भी है, ईमेल आईडी, फीस। सो दिस इज दीपक्स रिकॉर्ड, ओके। सो इसीलिए ये रो को बोलते हैं रिकॉर्ड्स और टपल्स। सो इसको बोलते जो आईडी है, दिस इज अ कॉलम, नेम इज अ कॉलम, एड्रेस इज अ कॉलम, फोन नंबर इज कॉलम, ईमेल आईडी इज अ कॉलम, फीस कॉलम। सो कॉलम का जो अलग जो नाम है, कॉलम को आप बोलते हो फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। कॉलम को बोलते हो फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये हो गया आपका, रो को बोलते हो टपल्स एंड रिकॉर्ड्स। और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसको आप बोलते हो सेल, ओके। ये हो गया आपका एक सेल, ओके, दिस इज कॉल्ड ए सेल, और वैल्यू बोल सकते हो। अगर आपको कोई पूछेगा कि ओके, जो आईडी नंबर 20 है उसका ईमेल आईडी निकाल के दो, दैट मीन्स आईडी नंबर 20 का ईमेल आईडी जो है ये वाला वैल्यू निकाल के दो। वो हम लोग सीखेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, दैट वी विल स्लोली अंडरस्टैंड। सो ये समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक डेटाबेस में जब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, डेटाबेस के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल टेबल्स। जैसे आप घर में आप देखोगे, एक लेट्स से हाउस या होम व्हाटएवर, यू हैव मल्टीपल टेबल्स, राइट? जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल का काम अलग रहता है। स्टडी टेबल हो गया, ओके, स्टडी टेबल हो गया, ओके, स्टूडियो टेबल हो गया, ओके, आपका टी टेबल, सेंटर टेबल हो गया। सबका काम अलग अलग रहता है, राइट? ये वैसे अगर आप स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल सेपरेट मेंटेन करते हो, टीचर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सेपरेट मेंटेन करते हो, फीस के लिए अलग, लाइब्रेरी के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, स्टाफ सैलरी कमीशन जो जो देते हो उसके लिए एक अलग टेबल मेंटेन करते हो। वैसे इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस यू कैन हैव मल्टीपल tables to store the data, multiple tables to store relevant data.
Okay, so clear, everyone understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, any questions so far? नहीं सर, no question. No, sir. No question. सो ये हो गया एक टेबल, डेटाबेस हमने समझा, टेबल हमने समझा, ठीक है। ये जो टेबल है, लेट्स से ये जो डेटाबेस है, अभी करेंगे क्या? सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस टेबल? सो टेबल हमने अपने को क्या टास्क क्या करना है? हम लोग पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मतलब स्कूल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देन विद इन दैट डेटाबेस वी हैव टू क्रिएट tables, we have to insert the data. ओके, आ रहा है समझ में? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको टेबल क्रिएट करना है। अगर एक स्कूल का और कॉलेज का और कोई भी इंस्टीट्यूट का किसी का भी डेटा आप स्टोर करोगे, पहले डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसके बाद टेबल क्रिएट करोगे, टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे। ओके, सो जब आप ये सब टेबल में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट द डेटा, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट द डेटा, डेटा को अपडेट डिलीट हो गया, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब रीड, फेच द डेटा, करेक्ट। सो ये सब काम हम लोग टेबल और डेटाबेस में कर सकते हैं। नाउ हु इज गोइंग टू डू दैट? ये सब करेगा कौन? सो इसके लिए यू हैव ए सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब एक्टिविटी जो करेगा, क्योंकि टेबल आपने बनाया मतलब यू हैव टू इंसर्ट द डेटा। कोई अगर नया स्टूडेंट एनरोल कर रहा है, आई हैव टू इंसर्ट द डेटा। अगर स्टूडेंट का ग्रेड चेंज हुआ, सपोज ये साल एग्जाम दिया, नेक्स्ट ईयर उसको लेट्स से 7th ग्रेड में था, ही मूव टू 8th ग्रेड, ओके, देन आई हैव टू चेंज द ग्रेड। उसका फीस भी चेंज होगा। लेट्स से प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में लेट्स से 1 लाख फीस ले रहे थे, ओके, 6 स्टूडेंट के लिए 1 लाख फीस ले रहे हैं। वो बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर 20% फी इंक्रीज होगा। जब बच्चा स्कूल में प्रमोट होगा टू नेक्स्ट ग्रेड और नेक्स्ट क्लास, देन 20% फीस, दैट मीन्स अभी मेरे को 1 लाख के बदले 1,20,000 फी को भी चेंज करना पड़ेगा। ये डेटा को अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं? ग्रेड को भी Yes. अपडेट करना पड़ेगा। नाउ ही वाज इन द 6th ग्रेड, नाउ इज मूविंग टू 7th ग्रेड। चलो मैं बोलूंगा चलो 7th ग्रेड से है ना, ये जो शहीद नगर कैंपस है, सपोज ये शहीद नगर कैंपस में आप लोग पढ़ रहे थे, 7th ग्रेड से यू हैव टू गो टू पटिया कैंपस और सम अदर कैंपस, मे बी चंद्रशेखरपुर कैंपस। ना योर डिटेल्स विल बी चेंज्ड। चंद्रशेखरपुर आपका कैंपस चेंज होगा, आपका फीस अपडेट होगा, देन योर ग्रेड ऑल्सो विल बी चेंज्ड। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू अपडेट द डेटा। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सो व्हाई योर डेटा गेट्स मॉडिफाइड? बिकॉज आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको रेटिंग मिलता है। ओके, सो ऑल दिस व्हेन यू गेट, योर डेटा हैज टू बी अपडेटेड इन द डेटाबेस आल्सो। आपका कुछ इंसेंटिव आपको मिला। ओके, सो दैट इज रीजन व्हाई यू नीड टू अपडेट द डेटा। सो डिलीट क्यों करते हैं? कोई डेटा, सपोज आप अभी सपोज आई हैव गॉट 10 एम्प्लॉइज, अभी 3 एम्प्लॉइज छोड़ के अलग कंपनीज में गए, सो आई हैव टू डिलीट देयर डेटा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आर्काइव कर सकता हूँ। उनका डेटा मेंटेन करूंगा, बट दैट्स इन ए इनएक्टिव फाइल में मेंटेन करूंगा। एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट से उनको निकालूंगा। सो आई हैव टू डिलीट द डेटा। सो एक्सेस द डेटा, डेटा तो स्टोर हो गया, फिर उसको अगर जब जरूरत पड़े मैं चेक देख सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको अकाउंट डिटेल्स एक्सेस करना है, सो यू कैन गो टू द बैंक एंड चेक फॉर योर, आई मीन यू विल जस्ट हैव टू गिव योर अकाउंट डिटेल्स। वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट का डिटेल्स आपको बताएंगे कि हाँ इतना बैलेंस है, लास्ट ट्रांजैक्शन इतना हुआ था, सब यू हैव टू एक्सेस मतलब यूट्यूब में वीडियो सर्च करते हो, यू आर एक्सेसिंग सम ऑफ द कंटेंट्स। एक्सेस मतलब रीड करना। हम लोग सर्च करते मतलब when we are searching something in YouTube and it is giving us the results, that means you have accessed that data from YouTube's database. आप किसी कोई फ्रेंड को फेसबुक में सर्च करते हो, फ्रेंड दैट फेसबुक गिव्स यू लिस्ट ऑफ, आई मीन आप किसी का नाम सचिन है, सचिन को आप सर्च कर रहे हो, तो फेसबुक क्या करता है, सचिन जितने सारे सचिन नेम है उसको सर्च करके दिखाता है, जितने सारे यूजर्स है। सो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस डेटा। इंसर्ट आपने समझा, अपडेट समझा, डिलीट समझा, एक्सेस समझा। सो एक्सेस को हम लोग है ना, कोई बोलते हैं एक्सेस, डेटा को रीड करो, एक्सेस करो, डेटा को गेट करो, डेटा को रीड करो,
डेटा को फेच करो, डेटा को डिस्प्ले करो, इसका मीनिंग सेम ही है, इसका मीनिंग सेम है। एक्सेस करना, गेट करना, रीड करना, फेच करना, डिस्प्ले करना, इट्स ऑल सेम। मतलब कोई कोई बोल सकता है गेट, कोई बोल सकता है रीड, कोई बोल सकता है फेच। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है ये सब ये एक्टिविटी करता है। डेटाबेस इज जस्ट ए स्टोरेज प्लेस, डेटाबेस इटसेल्फ विल नॉट डू एनीथिंग, डेटाबेस अकेला कुछ कर नहीं सकता। यू शुड यूज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच विल डू ऑल दिस एक्टिविटीज। ओके, डीबीएमएस आपने सुना होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है डीबीएमएस में। डीबीएमएस में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है आपने सुना होगा, ओरेकल करके एक सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल सर्वर करके एक सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल करके एक है, माई एसक्यूएल, और MongoDB. पोस्टग्रेसक्यूएल। कौन सा? और MongoDB. MongoDB. MongoDB is MongoDB is different. It's a NoSQL. It's not structured वाला. Okay, Postgre है, एक MariaDB है, IBM का एक है DB2, ये मेन फ्रेम सिस्टम में यूज होता है, IBM का DB2 है। देन Azure क्लाउड वाला है, Azure SQL। ओके, देन वी हैव AWS का SQL है। बहुत सारा है, बहुत सारे मार्केट में 20+ प्रोडक्ट्स है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये 4, मतलब Oracle SQL Server, MySQL, PostgreSQL। Okay, so these are the common database management systems, commercial database management systems available in the market. Okay, so इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे in the next class. So अभी तक कुछ questions है, doubt है, anything? No, sir. No, sir. Clear? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.